Hello students, so here I am with a new chapter of the syllabus of your particular 10th standard. Okay, so we are actually going through the journey of Science 2 of your 10th standard syllabus. And now today we are going to start with a new chapter, which is chapter number 6, Animal Classification. Now this animal classification is a very vast chapter, or we can say one of the largest chapter of your textbook. Okay, so please take care while studying it. Other chapters are quite easier, we can say, or not easier but less complicated as compared to this particular chapter. And this chapter actually has a lot of scope for study in further classes. For example, if you will go in 12th standard, so there will be more wider classification, and the terms that we are going to use in this chapter. For example, here I have given certain criteria. On the basis of this criteria, we are going to classify organisms. So this criteria you will be listening in your higher studies, in your higher education. Also, if you obviously if you take science or biology as your core subject, but it doesn't mean that if you are going to take commerce or arts, you will omit all these things. So because this is a natural thing, and we all are living in this environment, so we should know how animals are living, surviving on this earth. So here, coming with the chapter of animal classification, actually, first of all, in your textbook, they have given that this nature is having a vast variety of species, starting from very small herbs, plants and all that. We are moving towards whale. We have studied the last chapter, that is first chapter in heredity and evolution, that is actually about how organisms have evolved from a protoplasm. Protoplasm is a cell without a cell wall. So that protoplasm, we have started from that, and now what we can see is a complete large blue whale. So such kind of evolution is taking place, and such kind of varieties of species are present on this earth. Scientists say that there are around 7 million species of animals are present. 7 million approximate animal species are present on this earth. And we can say most of them are unknown and they are not discovered yet. If you observe small insects coming at your house, तो कितने अलग-अलग जगह के insects हमारे यहाँ आते हैं. Even most of the time it happens that we are seeing that insect for the first time, and this happens a lot of times. So imagine how a vast variety of diversity of these species, these living organisms are prevailing in the environment. So now, after studying this chapter, you will get an idea that what this animal actually is. अगर उसका नाम हम ना बता पाए, but at least हम ये बता पाएंगे कि वो एक कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है, वो एक सेल वॉल वाला एनिमल है या कि उसके पास सेल वॉल नहीं हुई, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, that we will be able to know something about that animal after studying this chapter. So this is how this chapter is important. Even though if you are not able to properly say that this is the particular name of this organism, at least you will be able to classify them in certain characteristics. यार ये इस प्रजाति का है. For example, now there are certain I can take example of arthropods. Okay, arthropods 8 पैर वाले. So this arthropods, cockroach, spider, butterfly, these all will come in the arthropods. तो उनके characteristics क्या है? उनको 8 पैर है, उनका skin cutaneous है, मतलब cutaneous काइटिन की लेयर उनके ऊपर प्रेजेंट है. बटरफ्लाई देख लो या फिर कॉकरोच देख लो, उसका शेल कितना हार्ड होता है. सिमिलरली स्पाइडर के ऊपर भी ऐसे 8 पैर होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं, उनके आगे के जो एंटीना होते हैं, दैट आर प्रेजेंट. सो दिस आर वी कैन से समिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम ये बता पाएंगे कि अगर ऐसा ही एक इंसेक्ट हमें दिखता है, सो वी वॉन्ट बी एबल टू से द नेम अबाउट ऑफ दैट इंसेक्ट, बट एटलीस्ट हम ये बोलेंगे कि उसके 8 पैर है, उसके पास एंटीना है. सो दैट इज द आर्थ्रोपोड. At least we can say that. Okay, so this is what the impact of animal classification lesson is going to have on your life, to observe living organisms in the environment. So now, starting with a mere very easy classification that is given on the first page of your textbook, that is depending upon the prokaryotes and eukaryotes. Living organisms are widely classified as prokaryotes and eukaryotes. अब हमारे सेल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल यूनिट है न्यूक्लियस. जैसे कि हमारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे हमारे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. सो द न्यूक्लियस इन साइंटिफिक लैंग्वेज, मोर प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड एज कैरियन. It is called as carrion.
So this KARY is nothing but for the caryon. So prokaryon means primitive nucleus is present. Pro यानी primitive, eukaryote मतलब developed type का nucleus है. So prokaryotes, bacteria जो होते हैं that are prokaryotes means there is a cell. This bacteria consists of a cell and the DNA of bacteria is just like this present in the its cytoplasm. So उसके पास एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं है जिसकी न्यूक्लियर एनवेलप है. हम ये जो पार्ट में उसका जो डीएनए प्रेजेंट है इसे हम कह सकते हैं कि वो उसका न्यूक्लियस है. बट यूकैरियोट्स में क्या है, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा. उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर हो गए. वो न्यूक्लियर शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होगा न्यूक्लियस. सो दिस इज अ प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनका विजिबल नहीं होता. यूकैरियोट्स हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस. प्रॉपर न्यूक्लियस दिखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखती है. मेम्ब्रेन है तो उसमें जहां भी होल है दैट आर न्यूक्लियर पोर एंड उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोसोम होता है. जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम. सो दिस इज हाउ न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट न्यूक्लियोसोम, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे साइटोप्लाज्म वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म. सो ये सब यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है. So that is what I want to tell over here is living organisms कैसे क्लासीफाई है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव और यू यानी डेवलप. अब प्रोकैरियोट्स भी उन लोगों ने आगे क्लासीफाई की है किंगडम मोनेरा में. नाउ देयर इज अ थिंग दैट किंगडम एक ऐसा क्लासिफिकेशन का टेबल बनाते हैं जो स्टार्ट होता है ऐसे किंगडम, डिवीजन, फाइलम. डिवीजन एनिमल्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं और प्लांट्स के लिए फाइलम वर्ड यूज करते हैं. Sorry, I said vice versa. For animals you will use the word phylum and for plants you will use division. So this is how kingdom, division, फिर family आती है. ऐसे पर्टिकुलर उसके स्टेजेस होते हैं. So kingdom पहले स्टेज के हिसाब से हम डिवाइड करें तो किंगडम, फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस आर देयर. ओके, हम अपने आप को कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिवाइडिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द एनिमल्स. मतलब हम ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं. ओके, हम ह्यूमंस हैं, दैट इज पर्टिकुलर वी कैन से दैट इज अवर किंगडम. उसके बाद ह्यूमन के बाद हम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं कि हम मेल है या फीमेल. ओके, फिर मेल्स अलग हो गए, फीमेल अलग हो गए. आफ्टर दैट वी विल से दैट इसका डिपेंडिंग अपॉन द वी कैन से स्किन कलर वी कैन डिस्टिंग्विश. सो स्किन कलर के ऊपर वो क्लासीफाई कर सकते हैं. उसके बाद इफ यू कैन सी यू कैन क्लासीफाई डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट. सो ये दिस इज आई एम नॉट सपोर्टिंग डिस्क्रिमिनेशन एनीवेयर. मैं ऐसे नहीं बोल रही दैट वी शुड डू डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना चाहिए. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट सच काइंड ऑफ थिंग. फर्स्ट वी हैव क्लासिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ what they are human or they are other animal, then depending upon their gender. So this is how classification is done. Kingdom किसी एक क्राइटेरिया पे किंगडम क्लासिफाई करे जाते हैं. सो उसी तरह मोनेरा एक किंगडम है जो कि है प्रोकैरियोट्स का. अब ये मोनेरा आगे इसके देयर इज नो क्लासिफिकेशन, बट इन यूकैरियोट्स यू कैन क्लासिफाई यूकैरियोट्स इनटू टू थिंग्स, दैट इज मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर. अब मल्टी यानी मेनी सेल्स एंड यूनी यानी वन सेल. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक ही सेल के ऊपर वो जी सकते. अमीबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, यूग्लिना हो गया. सो दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी मेनी सेल्स. फॉर एग्जाम्पल एनी एनिमल इज देयर. अर्थवॉर्म ले लो, यू कैन टेक द आर्थ्रोपोड, यू कैन टेक ह्यूमंस तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है. एनी एनिमल यू टेक दैट इज अ मल्टीसेल्युलर एनिमल. हाईली डेवलप्ड एनिमल जो होते हैं वो मल्टीसेल्युलर यानी एक से ज्यादा सेल्स. हमारे बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स है. ओके, दिस इज हाउ वी कैन से यूनिसेल्युलर. यूकैरियोट्स आर क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. प्रोकैरियोट्स में मल्टीसेल्युलर जैसा कुछ नहीं होता. दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर वी कैन से. मतलब पर्टिकुलरली एक सेल है सिर्फ और वो लिविंग है. सो दैट इज अ मोनेरा. यूकैरियोट में यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. अब यूनिसेल्युलर में भी एक किंगडम आता है दैट इज द प्रोटिस्ट्स. प्रोटिस्टा का किंगडम आता है. ओके, दिस प्रोटिस्ट्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल फॉर नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस प्रोटिस्ट एंड ऑल फर्दर प्रॉपरली. So for now just remember that this kingdom Protista comes under eukaryotes and which eukaryotes? Unicellular eukaryote. एक सेल है उसके पास और उसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, वो है ये प्रोटिस्टा. और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अब मल्टी सेल्युलर यानी एक सेल है, ज्यादा सेल है.
तो उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो सेल वॉल के साथ और एक तो सेल वॉल के बिना. दैट इज वन सेल इज प्रेजेंट, अदर सेल इज प्रेजेंट. इन बिटवीन टू सेल्स इज देयर एनी सपोर्ट? So that support is the cell wall. So this cell wall is present in some animals and in some other animals it is not present. Not animal, we can say organisms. So ऐसे कौन से organisms है जिनके पास cell wall है? So those are plants. Plants have cell wall and we animals does not have cell wall. I don't have cell wall, you don't have cell wall, any dog, cat, take any of the animal, earthworm you take, mosquito you take, they don't have any cell wall. We animals don't have cell wall. This particular cell wall is present in plants and fungus and bacteria and all that. अब bacteria जो है वो यहाँ पे आ जाएगी प्रोकैरियोट में. Bacteria are prokaryote. So bacteria prokaryote में आ जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. उनके पास भी cell wall होता है. This cell wall is now this cell wall containing organisms are also classified into two, that is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are the one who can make their own food. Autotroph खुद से automatically food बनाने वाले. Trophic level I have told you ना, trophic something related to the food intake. Heterotroph अलग अलग जगहों पे से खुद का फूड इकट्ठा करते हैं बट खुद बनाते नहीं है. Those are heterotrophs. So autotrophs none other than the plants. Only plants can make their own food by using the sun energy, sunlight. So this is the kingdom Plantae and this is heterotrophs, the kingdom Fungi, that is the fungus. Always pronounce this as fungi. Fungi, wrong pronunciations. Fungi is the correct pronunciation for this kingdom. Okay, so if you trust my pronunciations, you can take that this is a fungi and this is the perfect pronunciation for this. So these heterotrophs are what they cannot make their own food. जो फंगस है वो दूसरे डेड और डीकेइंग मटेरियल पे ग्रो होते हैं, जैसे कि डीकम्पोजर्स का काम करते हैं. आपने ब्रेड रख दिया है फ्रिज में, आप भूल गए हो, तो दैट फंगस विल ग्रो ऑन दैट ब्रेड बिकॉज दैट कैनॉट मेक देयर ओन फूड. So these are fungus. And the cell wall which is not present, when it is not present in the Animalia, kingdom Animalia. Ab kingdom Animalia is a very vast kingdom starting from so much we can say small organisms to mammals like whales. It is such vast actually a kingdom, so I cannot explain Animalia in this one word. There is a lot further and we are going to study this kingdom Animalia. If you see this in your textbook, kingdom Animalia का एक अलग से topic दिया हुआ है. There here we are going to see that. This is the introduction lecture where you will understand what is actually given in the textbook for this chapter. So यहाँ पे classification हमने देखा प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. प्रोकैरियोट में मोनेरा, यूकैरियोट में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर के लिए आगे आ जाता है प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर में दो टाइप्स है, दैट इज विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉल प्लांट्स और फंगस, जो कि ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप है. विदाउट सेल वॉल यानी सारे एनिमैलिया वाले किंगडम. नाउ there are different scientists who have taken part in this classification. So one important scientist, which is actually I don't know why they have not given in your textbook, but the scientist's name is Whittaker. So the Whittaker has given 5 kingdom classification. So Whittaker साइंटिस्ट के हिसाब से जो हमने एनिमल्स क्लासिफाई किए हैं वो 5 किंगडम्स के ऊपर किए. सो दोज किंगडम्स वेयर Whittaker के हिसाब से 5 किंगडम, अगर हम लाइन से लिखे Whittaker क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड यू डॉट डाउन द किंगडम्स. सो फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमैलिया. Whittaker ने कौन से 5 किंगडम लिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया. ये 5 किंगडम उसने बताया. अब मोनेरा के अंदर क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया मोनेरा में आ जाता है. प्रोटिस्टा में और छोटे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. उसके बाद यानी वी कैन से हमारे प्रोटोजोआ वगैरह जो है, अमीबा है, पैरामोशियम है, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं. उसके बाद फंगस है. फंगस इज अ वेरी वी कैन से डेवलप्ड है फंगस इन मोनेरा और प्रोटिस्टा से. फंगस का एग्जांपल एक्चुअली आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव ओवर हियर. देयर आर लॉट ऑफ फंगस वी कैन सी. बुर्री लगी किसी चीज को बुरशी, वी कैन से इन मराठी वी से दैट. सो दैट इज हाउ वी कैन ऑब्जर्व देम बट वी डोंट नो देयर नेम. सो वो आगे के चैप्टर्स में वो भी आएगा फंगस के नेम. ओके, एस्परजिलस इज अ फंगस, यीस्ट के नेम होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस अगेन. सो फंगस के बाद आता है प्लांटी.
और फिर एनिमल या फंगस की भी एक्चुअली 5 आगे के क्लासिफिकेशन होते हैं. माइसिड्स बोलते हैं, बेसिडोमाइसिड्स, आर्थ्रो मतलब अलग अलग, माइसेलियम यानी फंगस की क्लास है वो. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको आगे क्लासिफाई. प्लांटी को भी अलग अलग, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म लास्ट के उसके जो मेन. एंजियोस्पर्म यानी जो हमारे प्लांट्स हम यहाँ पे देखते हैं ना, बड़े बड़े मैंगो एंड ऑल, दे विल कम इन द एंजियोस्पर्म. सबसे लास्ट का उसका जो फाइलम है दैट इज एंजियोस्पर्म इन प्लांट्स. सिमिलरली एनिमैलिया का सबसे लास्ट का मैमल्स है, दैट इज वी कम इन दैट मैमल्स. दिस इज हाउ वी कैन से कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई की भी 5 अलग क्लासेस, फिर प्लांटी की भी 5 अलग क्लासेस, और फिर एनिमैलिया की भी 5 अलग क्लासेस. सो वी कैन से क्लासेस, सब क्लासेस, डिवीजन, फाइलम, वो सब एक्चुअली आता है उसमें. मैं लाइन से नहीं बोल रही हूँ अभी, पहले I can tell you about it, or I can send a particular photo on your group for that, how it is classified. So this is how is the main classification taking place. एक तो हमने देखा विटेकर का, जो जिस तरह 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है. Now there is a history of animal classification given. Before that, what is the definition for animal classification? Function of formation of groups and subgroups of animals. हम एनिमल्स के ग्रुप बना रहे हैं. इस एनिमल के पास एक ही सेल है तो उसको यूनिसेलुलर के ग्रुप में डाल दिया. इसके पास ज्यादा सेल है तो उसको मल्टी सेलुलर के ग्रुप में डाल दिया. अब वो मल्टी सेलुलर में भी वो हेटेरोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप है, तो उसका सब ग्रुप बना दिया. सो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स and subgroups of animals depending upon their similarities and differences among them is called as the animal classification. History of animal classification is having certain classifications. यहाँ पे जो 2 important classification उन लोग ने दिए है, that is artificial and natural system. Artificial system was given by Aristotle scientist. Aristotle ने ये classify किया on the basis of the size, habits and habitats. मतलब कितना बड़ा एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या हैबिट्स है, वो क्या खाता है, कैसे जीता है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या हैबिटेट यानी वो कहाँ रहता है. कुछ एनिमल्स दे लिव ऑन द ट्री, दे आर some animals they live on the, we can say the ground as well as they live in water. They are, we can say, reptiles, amphibians है. उसके बाद फिर कुछ एनिमल्स है जो सिर्फ लैंड पे रह सकते जैसे कि हम. सो दोज आर टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. फिर एक्वाटिक है जो पानी में रहते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट्स वी कैन से दैट एनिमल्स आर क्लासिफाइड. अब जो एनिमल सभी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी सभी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, दोज आर ओमनी प्रेजेंट एनिमल्स. So this is how we can say classification can be done in a way. किस बेसिस पे एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया? साइज, देन हैबिटेट एंड हैबिट, इन 3 चीजों. आफ्टर दैट इज द नेचुरल सिस्टम. So in the natural system, classification was done on the basis of various criteria. जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज है, सेल का क्या टाइप है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, क्रोमोसोम का क्या टाइप है, एक पैर है क्रोमोसोम का, 2 पैर है क्रोमोसोम के, 2 से ज्यादा तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए. तो डिपेंड कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, वी कैन से 23 कैसे पैर है. ओके, वी हैव फुटवेयर्स, वी कैन से कि हमारे पास 4 फुटवेयर्स है. बट अगर हम पैर में देखें तो हमारे पास 2 ही पैर है. So that is how we can say chromosomes. 46 chromosomes we have, but we have 23 pairs of those chromosomes. अब उसमें भी मेल्स में देखें तो X chromosomes and Y chromosomes. While in females all are X chromosomes. हमने ये देखा है in different other lesson we can see. So now this is how classification was done. Other scientists are also there. Carl Lewis has also proposed the animal classification. अब जो कार्ल लुईस का क्लासिफिकेशन है वो 3 किंगडम्स में डिवाइडेड है, 3 चीजों में डिवाइडेड है. कार्ल लुईस आई एम सेइंग, विटेकर ने 5 में किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया. उसके बाद एरिस्टोटल ने हैबिटेट, साइज और हैबिट क्यों. फिर नेचुरल सिस्टम अलग से निकला गया, लीनियस उसमें काम आया. आफ्टर दैट ये जो कार्ल लुईस है उसने 3 चीजों में डिवाइड किया क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वॉज डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया. ओके, एक क्लास था बैक्टीरिया का, एक क्लास था आर्की का, और एक था यूकैरिया. ओके, बैक्टीरिया में आ गए सारे बैक्टीरिया जो कि हमारे सम ऑफ द बैक्टीरिया वी कैन से दे कॉज ऑफ अस डिसीजेस. बहुत नाम है बैक्टीरिया के अलग अलग. आई डोंट नो यू आर नोइंग द नेम्स ऑन योर 10th स्टैंडर्ड लेवल, बट बैक्टीरिया ऐसे एक्चुअली जो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर.
Escherichia coli is the name of a bacteria. We can say Staphylococcus aureus is the name of the bacteria. Salmonella typhi is a bacteria which causes typhoid. Okay, so ऐसे अलग अलग. Klebsiella pneumoniae एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया करता है. So this bacteria एक सेल है, उसके अंदर उनका DNA है, थोड़े कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट है, बस माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं प्रेजेंट होते इधर. So this is how we can say कुछ में होते हैं. Some of them are having various classification, various system we can say. So ये सब बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एक लिंक है बैक्टीरिया और यूकैरिया. यूकैरिया क्या, जिनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस है. सो काल वो इसने 3 में किया, ये भी नहीं दिया टेक्स्ट बुक में. एक्चुअली दे हैव गिवन अकॉर्डिंग टू मी गिवन समवेयर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, तो दे शुड गिव प्रॉपरली बट दे हैव नॉट डन सो. सो नाउ हियर वी कैन से वी हैव सीन दिस क्लासिफिकेशन. विटेकर का मैंने बताया कैसे होना चाहिए. अदर देन दैट आर्टिफिशियल एरिस्टोटल का नेचुरल सिस्टम, सेल, क्रोमोसोम और टाइप्स ऑफ सेल, इसके बेसिस पे किया. उसके बाद एक कार्ल लुईस का सिस्टम जिसमें आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया ये 3 आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल मेथड जो हम देखेंगे. So tomorrow I think in the next lecture we can start with the proper classification. Today we are going to see how they are classified. We have completed 2 topics of your textbook. First page is completed of this classification. Second, history we have done. And now one more thing about chordates and non-chordates we will see. And हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं that we are going to see in this criteria. So the traditional method is classification on the basis of chordates and non-chordates. अब ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के अंडर ही हम सब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पढ़ा ना हमने, वैसे ही पहला होगा कॉर्डेट. तो आपको ऐसे क्लासिफाई करना है कि ये एनिमल कॉर्डेट्स में आता है. उसके बाद बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. ओके, सो कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा ऐसे 2 वी कैन से सब किंगडम आ जाते हैं. किसमें? किंगडम एनिमैलिया. किंगडम एनिमैलिया में कौन से 2 सब किंगडम आ जाते हैं? फर्स्ट इज द मेन किंगडम क्या है? एनिमैलिया. इस एनिमैलिया में हम आगे देखेंगे एक क्लास है नॉन कॉर्डेट्स की और दूसरी क्लास है कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, अब ये किस बेसिस पे डिफरेंशिएट हुए हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नाउ नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट अ स्केलेटल थिंग that is present in the animal, जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं. अब मेरी बॉडी है जहाँ पे मेरा फेस पॉइंटेड है, दैट इज माई वेंट्रल साइड, एंड वेयर माई हेयर्स आर देयर, दैट इज द डॉर्सल साइड फॉर नाउ. ओके, सो अगर कॉकरोच है, कॉकरोच ऐसे क्रॉल हो रहा है, सो उसके नीचे का जो है वो वेंट्रल साइड है, एंड द अबव वेयर फीदर्स आर प्रेजेंट, दैट इज द डॉर्सल साइड. सो द डॉर्सल साइड में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिसके आसपास हमारे नर्व्स कनेक्टेड रहते हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं. सो दिस इज व्हाट नोटोकॉर्ड एक्चुअली. वी कैन सी अ स्मॉल connective system for nerves, that is the notochord. So non chordates में notochord नहीं होता. Body is supported by not supported by rod like notochord. इसके बाद pharyngeal gill slits are absent. Gill slits के लिए उनके पास lungs नहीं होते तो gills होते, वो इसमें नहीं होते. After that absent होते. Nerve cord if present is on the ventral side. अब जो notochord है उसके ऊपर ही nerve cord आती है. nerve जो हमारे सिग्नल पास करते हैं ना ब्रेन से, दैट इज नर्व. सो नोटोकॉर्ड है तो उस पर नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है और नर्व कॉर्ड उस पे ही आ जाती है. बट अगर नोटोकॉर्ड ही नहीं है तो ये नर्व कॉर्ड है वो आ जाती है वेंट्रल साइड. ओके, आफ्टर दैट इज द हार्ट. हार्ट इफ प्रेजेंट इज ऑन द डॉर्सल साइड. जो नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट्स है जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, उनके वेंट्रल साइड पे आ गया उनका नर्व और डॉर्सल साइड पे चला गया उनका हार्ट. Now I have notochord. My heart is in the further direction. आगे की साइड मेरा हार्ट वेंट्रल है और मेरा नोटोकॉर्ड डॉर्सल है. बट नॉन कॉर्डेट्स में क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं होता, नर्व्स आगे आ जाते हैं और हार्ट पीछे चला जाता है. सो हार्ट इज इन द डॉर्सल एंड नर्व्स आर ऑन द वेंट्रल साइड. सिमिलर वी कैन से वाइस वर्सा फॉर द कॉर्डेट्स, जिनमें बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड है तो डॉर्सल साइड में नर्व्स है, वेंट्रल साइड में हार्ट आ गया, लंग्स या फिर गिल स्लिट्स आ गए ब्रीथ करने के लिए. सो दिस इज हाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट आफ्टर सब किंगडम फाइलम आ जाते हैं. एनिमल्स के लिए वर्ड यूज करेंगे फाइलम और प्लांट्स के लिए डिविजन यूज करते हैं. सो वो हम आगे देखेंगे. नाउ दिस इज अ क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म. ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
यानी उनकी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, अमीबा है, पैरामोर्शियम है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, मतलब किस लेवल की उनकी बॉडी है, किस तरह से सेल्स से वो बने हुए हैं, वो हम ग्रेड्स में देखेंगे। नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, रेडियली, ऐसा होता है। दिस इज माई हैंड, इफ आई विल कट माई हैंड लाइक दिस, इट विल फॉर्म 2 पार्ट्स, बट वो 2 इक्वल पार्ट नहीं होगी। एक पार्ट के पास जाएगी 2 फिंगर्स, इस पार्ट के पास जाएंगे 3 फिंगर्स, सो दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, दैट इज असिमेट्रिकल। ओके, इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल। अगर मैं इस मार्कर को इस तरह से आई विल डिवाइड, सो दैट विल फॉर्म 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज सिमेट्रिकल। सो जो ऑर्गेनिज्म को हम सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं, दो आर सिमेट्रिकल। जिनको ऐसे असिमेट्रिकल, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हाथ एक ऑर्गेनिज्म है तो वो असिमेट्रिकल है। या फिर जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश लाइक दिस, सो इसको हम ऐसे रेडियली डिवाइड कर सकते हैं बीच में से, सो दिस इज द रेडियल सिमेट्री। वैसे ही जर्म लेयर्स यानी आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडल लेयर मीजोडर्म एंड इनर लेयर एंडोडर्म, ऐसे 3 लेयर है, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक कब होता है, जब 2 लेयर्स है, एक्टो एंड एंडो, एक्टो आउटसाइड, एंडो इनसाइड, 2 ही है, एक्टो एंडो, तो उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगर जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 की है, तो एक्टो, मीजो, एंडो। आफ्टर दैट इज द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी भी 3 तरह की होती है, यूसिलोमेट, असिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट। यूसिलोमेट यानी जो मीजो, एक्टो और एंडो है ना, उसके बीच में कैविटी होती है, हवा जैसी भरी, मतलब वी कैन से स्पेस इज देयर। ओके, सो दैट इज पर्टिकुलर प्रॉपर स्पेस है, तो वो यूसिलोमेट, उसमें सीलोम है। असिलोमेट यानी कैविटी नहीं है, और वी कैन से सूडोसिलोमेट, कैविटी है भी, नॉट प्रॉपरली, ट्रू भी नहीं है, और वी कैन से एब्सेंट भी नहीं है कैविटी। नेक्स्ट इज द बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स में आई है बॉडी, जैसे कि अर्थवॉर्म। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से 5 क्राइटेरिया में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सो दिस इज व्हाट फॉर अवर, so this is how properly our classification can be done. Agar in next lecture we are going to see this particular chapter, particular table given in your textbook, conventional classification system. Today we'll see that kingdom Animalia कैसे classification में आया. So it is a eukaryote, multicellular, without cell wall animals. So these animals are again divided into non-chordates and chordates. Notochord के basis पे ये classification होता है. After that वो आगे हम कैसे classify करेंगे वो देखा हमने. अब उनके नाम क्या क्या है, please better read it for the next lecture. I am not taking the names today because those are difficult names and you will get bored. That's why I didn't start it with this particular lecture. In next lecture we are going to study about how this criteria के short notes properly कैसे आ सकते हैं. That we will study in the next lecture. I hope you all have understood it. If not, video is something like you can scroll it again and again and watch the particular part जो आपको समझ नहीं आया. If still you don't understand, please you can reach to me anywhere on the comment section as well as the any personal contact that you people are having for me. Thank you so much. Keep watching.